Okay, guys. Today topic is Java 8 interview question and answer. This is very useful and very important topic for Java preparation. My previous topic is collection and hoops. So today we talk Java 8 interview question and answer. First question ki what is the new feature in Java 8? Java 8 का न्यू फीचर क्या है और वीडियो इम्पोर्टेंट उसके लिए है जो स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉट अ वेरी वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो माय वीडियो इज़ totally Hindi and English both mix up language, so it is very useful to all of you. So first question is, what is the new feature in Java 8? First, functional interface, lambda expression, default methods, Steam API, optional class. 5 तरह का फीचर है जावा 8 में, जिसमें कि फंक्शनल इंटरफेस है, लैम्डा एक्सप्रेशन है, डिफ़ॉल्ट मेथड्स है, स्टीम एपीआई है, ऑप्शनल क्लास है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है? द फंक्शनल इंटरफेस कैन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. फंक्शनल इंटरफेस उसको कहते हैं जिसमें ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रहता है. Next is, which are the two most popular method can be used for defining any number of functional interface. Which are the दो पॉपुलर मेथड क्या है जो यूज करते हैं एनी नंबर ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. तो द टू मोस्ट पॉपुलर मेथड्स यूज फॉर डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. फर्स्ट, स्टैटिक मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड. दो पॉपुलर मेथड है. फर्स्ट है स्टैटिक मेथड, सेकेंड है डिफ़ॉल्ट मेथड. एग्जाम्पल में आ जाएंगे रनेबल, एक्शन लिस्नर, कंपेरेबल. नेक्स्ट कि वाई जावा 8 फंक्शनल इंटरफेस. जावा 8 फंक्शनल इंटरफेस क्यों है? तो टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन एज वेल एज मैनिपुलेट कंपोज एग्जिस्टिंग फंक्शन. फोर्थ है कि व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज यूज फॉर. Lambda expression are anonymous function that allow you that functionality as a method. Lambda expression review the line of Java code. Lambda expression anonymous function है that is used to treat functionality as a method. Lambda expression review the line of Java code. It can applied on functional interface. इसका ड्रॉबैक है it makes the code readable. Next question is, what is default method? Default key was introduced in JDK version 1.8 or JDK version 8. Default keyword we can create a complete method inside an interface. Means default key was JDK version 1.8 है और 8 है, उसको complete method करते हैं inside interface. Default method are methods of the interface which has body. These method as name suggest use default keyword. इसमें हम जो बॉडी करते हैं वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में सजेस्ट करते हैं. व्हाट इज स्टीम एपीआई. तो स्टीम एपीआई is new feature. फर्स्ट है व्हाट इज स्टीम एपीआई, वाई यूज स्टीम एपीआई फॉर collection. तो स्टीम एपीआई a new feature added in Java 8. It is a special class that is used for processing object from source such as collection. The main purpose performs some operation on collection. Steam API can use for array. इसमें array में यूज होता है और मेन पर्पस जो है इसका
वो सम ऑपरेशन ऑन कलेक्शन. We reduce the Steam API because it support aggregate operation, which makes the processing simple. It support functional style programming. It does faster processing. It allows parallel operation. It support aggregate operation, makes the process simple. It support functional style program. It does faster processing. It allows parallel operation. Next one is, what is the difference between collection and Steam API? Very important question. ये क्वेश्चंस very useful for interview purpose. Steam API and collection API. It was introduced Java 8 as standard version. Steam API इंट्रोड्यूस करता है Java 8 स्टैंडर्ड वर्जन में. कलेक्शन API में it was introduced in Java 1.2. Second one, there is no use iterator and splitters. इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, इटरेटर एंड स्प्लिटर का यूज़ नहीं होता है. और कलेक्शन API में इट इज़ यूज़ इटरेटर एंड स्प्लिटर्स, इसमें यूज़ होता है इटरेटर एंड स्प्लिटर. थर्ड वन इज अन इन्फिनाइट नंबर ऑफ फीचर कैन बी स्टोर्ड. स्टीम API में इन्फिनाइट नंबर ऑफ फीचर को स्टोर कर सकते हैं. कलेक्शन API में अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड. इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू कंप्यूट द डाटा. इट इज़ यूज टू कंप्यूट द डाटा. It is used to store the data. It is used to compute the data. It is used to store the data. Next one is, how will you get the current date and time using Java date and time API? With the help of new program is written, with the help of new API introduced in Java, we have made use local date time and to get the current date and time. Next one is, what is the SAM interface? Java 8 has introduced the concept of functional interface that can have only one abstract method. Since these interface sometimes called SAM interface. SAM interface stand for single abstract method. Java 8 has introduced the concept of functional interface that can have only one abstract method. Since these interface sometimes called SAM interface. SAM interface stands for single abstract method. Next one is, what is marker interface? Interface that doesn't contain method, field and constant, known as marker interface. In other words, empty interface known as marker interface. मार्कर इंटरफेस ये होता है जिसमें मेथड, फील्ड और कांस्टेंट का कंटेंट नहीं होता है, उसको मार्कर इंटरफेस कहते हैं. या अदर वर्ड्स में कहते हैं कि एम्पटी इंटरफेस को मार्कर इंटरफेस कहते हैं. सीरियलाइजेबल, कॉन्टेनेबल, रिमोट, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ मार्कर इंटरफेस. व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मार्कर इंटरफेस? मार्कर इंटरफेस का यूज़ क्या है? तो जावा मार्कर इंटरफेस आर यूजफुल इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास एंड दैट इंफॉर्मेशन नेवर चेंज. सच केसेस यूज मार्कर इंटरफेस. मीन्स जावा मार्कर इंटरफेस यूजफुल है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्लास और इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, नेवर चेंज. दैट केसेस में हम यूज करते हैं मार्कर इंटरफेस. तो मार्कर इंटरफेस इज आल्सो वेरी यूजफुल इन इंटरव्यू पर्पस. व्हाट इज ऑप्शनल क्लास? जावा 8 फीचर का 5 फीचर है ऑप्शनल क्लास. ऑप्शनल क्लास a special wrapper class introduced in Java 8 which is used to avoid null pointer exception. ऑप्शनल क्लास स्पेशल रैपर क्लास है जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन. दिस फाइनल क्लास इज present under Java util package. Null pointer exception occurs when we
फॉल टू परफॉर्म द नल चेक्स। ऑप्शनल क्लास जो स्पेशल रैपर क्लास है, इंट्रोड्यूस करते हैं जावा 8 में। यूज क्यों करते हैं? इसका फर्स्ट है कि नल पॉइंट एक्सेप्शन को अवॉइड करता है। दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शनल क्लास। एक बार फिर से जावा लैम्डा एक्सप्रेशन को हिंदी में एक्सप्लेन नेशन है, समझ सकते हैं कि जावा में लैम्डा एक्सप्रेशन बिना नाम का मेथड होता है। जावा में जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो बिना नाम का मेथड होता है। इस मेथड का कोई टाइप भी नहीं होता है। यदि इसका बॉडी में आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा एक्सप्रेशन बिना नाम का मेथड होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। इस मेथड का कोई टाइप नहीं होता है। यदि इस बॉडी में आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न टाइप स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड खुद एग्जीक्यूट नहीं होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन जो खुद एग्जीक्यूट नहीं होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शन इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिग्नेचर यूज करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन में एनोनिमस फंक्शन है और ये खुद एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो जो है सो लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शन इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिग्नेचर यूज करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन को जावा में केवल तभी यूज किया जा सकता है जब टाइप आपके पास पहले से ही अवेलेबल हो, जैसे कि वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, मेथड, आर्गुमेंट आदि। और दूसरी जितने भी कंडीशन है उसमें जिनमें टाइप आपके पास पहले से ही अवेलेबल हो, आप जावा में लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए आप लैम्डा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल ऑपरेटर होता है जिसके लेफ्ट साइड में पैरामीटर होता है, राइट साइड में मेथड बॉडी होती है जिस लैम्डा बॉडी कहा जाता है। और ये हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेशन है जो नॉट कंफर्टेबल टू इन इंग्लिश वेरी वेल, सो ये हिंदी में एक्सप्लेशन समझ सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आप उसी इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसका सिग्नेचर आपने यूज किया था। जिसका सिग्नेचर आपने यूज़ किया था, आप चाहे उस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो फंक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करती है। लैम्डा एक्सप्रेशन का आप उसी इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं जिसका सिग्नेचर आप यूज किए हैं। एग्जांपल है क्रिएट अ जावा लैम्डा एक्सप्रेशन में वेलकम वेल स्ट्रिंग नेम में आप दे सकते हैं बेस्ट हिंदी ट्यूटोरियल, वेल नेम करते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट है हेलो नेम के साथ। फंक्शनल इंटरफेस थोड़ा इसका भी हिंदी में कुछ लिखे हैं वो आप समझ सकते हैं, देन यूज़फुल होगा आपको समझने के लिए। फंक्शनल इंटरफेस जावा में लैम्डा एक्सप्रेशन समझने से पहले आपको फंक्शनल इंटरफेस का समझना होगा। लैम्डा एक्सप्रेशन को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है फंक्शनल इंटरफेस समझना। एक फंक्शनल इंटरफेस होता है जिसमें केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आता है। इंग्लिश में समझ लिए थे कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यही बात हिंदी में भी है कि फंक्शनल इंटरफेस को केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज किए जाने वाला है। फिर रनएबल इंटरफेस एक ही फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। ऐसे इंटरफेस का काम उसमें डिफ़ाइन किया गया है, वह एक मेथड को डिफ़ाइन करता है। उदाहरण के लिए एक इंटरफेस क्रिएट किया है, ये फंक्शनल है। इस फंक्शनल इंटरफेस का नाम वेलकम है। इस इंटरफेस को एक हेलो मेथड है जो कि एक डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। ये मेथड एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है और मैसेज प्रिंट करता है। जैसे आप इंटरफेस लिए वेलकम में स्ट्रिंग हेलो, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में इसलिए बताया गया क्योंकि जावा में लैम्डा एक्सप्रेशन के द्वारा फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब अगर आप फंक्शनल इंटरफेस जानते हैं तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा जानने के लिए। इसीलिए हम फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन को जानने से पहले फंक्शनल इंटरफेस जानते हैं। फंक्शनल इंटरफेस एक शॉर्ट में होता है कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो दीज आर कॉन्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश, ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने खुद से लिखा है। सो फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन समझने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो दीज आर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जावा 8 फीचर टू यूज़फुल इन योर इंटरव्यू। सो प्लीज़
watch the video and share the video. If you are useful, then please subscribe the my channel. Thank you.